राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। गज बज के आपा नारा लाइए, दोनों हाथ खड़े करके, जिवें आपा पहला स्टेज के उत्ते नारे लाए सी, श्री राहुल गांधी। आवाज बुलंद करके अमृतसर साहब वाले हो, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜॉर्ज जी, यशपाल आर्या जी, ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਲਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ श्री ओपी सोनी जी, साड़ी चेयरमैन कैंपेन कमेटी जिहड़ी हुण साड़ी पंजाब दी चेयरमैन कैंपेन कमेटी बनी है, उहदे चेयरमैन राणा कीपी जी, को चेयरमैन सुखविंदर सिंह डैनी जी, साडे कपूरथला तो लगातार पार्टी की प्रतिनिधित्व करते हुए फॉर्मर मिनिस्टर राणा गुरजीत सिंह जी, साडे बहुत ही सत्कारयोग रूरल ते अर्बन दे डिस्ट्रिक्ट प्रधान अश्विनी पप्पू और हरप्रताप अजनाला जी, साडे साउथ तो एक्स MLA रहे इंद्रबीर सिंह बुलारिया जी, साडे नॉर्थ तो प्रतिनिधित्व करते हुए साडे MLA रहे श्री सुनील दत्ती जी, साडे वेस्ट हल्के तो कांग्रेस के फॉर्मर मिनिस्टर डॉक्टर राजकुमार वेरका जी, अटारी तो तरसेम DC जी। मैं हुण ज्यादा समा नहीं लाऊंगा, मैं श्री राहुल गांधी जी का श्री अमृतसर साहिब आउण ते कांग्रेस वर्करां वल्लों पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी वल्लों दिल दियां गहराइयां तो जी आया कहना। और हुण मैं बहुत ही सत्कार नाल बेनती करूंगा साडे मैंबर पार्लीमेंट अमृतसर साहब तो सरदार गुरजीत सिंह औजला जी नूं ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। सरदार गुरजीत सिंह औजला। बहुत ही सत्कारयोग सारे देश के हरमन प्यारे नेता साडी कांग्रेस की रूहे रवां श्री राहुल गांधी जी और मंच ते विराजमान और इस पंडाल दे विच बैठे हुए समुचा कांग्रेस का परिवार, सीनियर लीडरशिप और यूनियर लीडरशिप और आम लोग जिहड़े राहुल गांधी जी नूं सुन आए हैं, मैं धन्यवाद करदा राहुल गांधी जी तुहाडा और समुची लीडरशिप का जिन्हां ने इस चोन प्रचार विच समा कढ़िया। राहुल जी जिन्हां ने 5000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके देश दे विच एक लहर खड़ी की, उन्हां फिरका प्रस्त ताकतां दे विरुद्ध जिन्हां ने देश नूं वंडण दे विच वर्गीकरण दे विच और धर्मां दे नां दे नाल लड़ाउण दे विच वड्डी भूमिका निभाई। राहुल जी ने एक कल्ले ऐसे इंसान होए ने जिन्हां ने सीधे तौर ते लोक मुद्दों के उत्ते सरकार नूं घेरिया, जिन्हां ने पार्लीमेंट दे अंदर और पार्लीमेंट दे बाहर सरकार नूं लाजवाब कर दिता, क्योंकि संविधान
ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਂਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਹਾਥਰਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟੈਰਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ 50% ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ CA2 ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ UPA ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਜੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੌਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹਣਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧੇ, ਬਾਗਾ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਹੋਣ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ। ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਡਰੱਗ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਤਿਆਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ।
सरदार प्रताप सिंह बाजवा। बहुत ही परम सत्कारयोग राहुल जी ते सारा कांग्रेस का साडा परिवार जिहड़ा स्टेज ते विराजमान है। मेरे वीरो, पंजाब की पहचान राहुल जी जय जवान ते जय किसान दे नाल। जिदन दा नरेंद्र मोदी आया मेरे वीरो, सारे नालों पहले ते उन्हें जवान खत्म किया। पिछले 4 साल तो लगातार किसानों के संघर्ष दे विच 700 तो वध किसान दिल्ली के बार्डर से शहीद होए ने। आज तो 2 महीने पहले शंभू ते खनौरी के बार्डर से एक साडा नौजवान वीर शुभकरण सिंह हरियाणा की बीजेपी सरकार वालों गोली मार के शहीद कर दिता गया। 400 तो वध साडे किसानों नूं गोलियां मारियां गईयां। मैनूं बहुत अफसोस ना कहना पैंदा, ये गुरुआं पीरां पैगंबरां ते सूरबीरां दी धरती। मोदी साहब जिद्दन दे आए हो तुसी, हर पंजाबी जिहड़ा जवानी दे विच हर परिवार जिहड़ा एक मैंबर अपना हिंदुस्तान की मिलिटरी दे विच भर्ती करने वास्ते घल्लदा सी। तुसी आंदे सारे ने पहले मिलिटरी की भर्ती खत्म की। तुसी उस तो बाद किसानों की जिहड़ी वाजिब डिमांड सी MSP दी, वो अजे तक कोई सुनवाई नहीं की। मैं सारे वीरां, मैं राहुल जी नूं दसना चाहना, आज तो 2-3 दिन पहला प्रधानमंत्री मोदी साहब पटियाले में आए सी, गुरदासपुर च आए ने, जलंधर च गए ने। सारा जिला जिहड़ा एक किलाबंदी कर दी गई। 9-9, 10-10 हज़ार आदमी सवेरे आके साडे किसानां नूं प्री अरेस्ट बेल कर लिया गई। उत्थे डिटेंशन सेंटर बनाए गए। तुसी मैनूं दसो, ये कोई लीडर नूं वेलकम करने का तरीका है? ये कोई प्रधानमंत्री आए ने कि किते कोई बॉस आया? सानू बहुत अफसोस ना कहना पैंदा, अज पंजाब ने यह फैसला करना कि असी किस किस्म का लीडर चाहते हैं। कि असी इहो जिहा लीडर चाहते हैं जिहड़ा कली अपनी गल रखे, जिहदे ना कोई खब्बे आदमी विखे, ना सज्जे विखे, ना सामने विखे, ना पिछे विखे। एक पासे साडा लीडर राहुल गांधी जिहदे नाल हज़ारां दी तादाद दे विच कन्याकुमारी तो कश्मीर तक अमीर गरीब किसान खेत मजदूर छोटा दुकानदार नौजवान साड़ियां भैणां साड़ियां मातावां चलियां ने हथ च हथ पा के कि तुहानूं लीडर चाहिदा कि सानूं बॉस चाहिदा। कि असी हिंदुस्तान च डेमोक्रेसी बचाना चाहते हैं कि असी चाहते हैं कि रूस वर्गा जिस तरह राष्ट्रपति प्यूटन ने पिछले साल एक कानून पास किया कि ता उम्र जिन्ना चिर रूस रहेगा उन्ना चिर प्यूटन उत्थों का राष्ट्रपति रहेगा। मेरे वीरों, अज पंजाब ने एक इतिहासिक फैसला करना कि असी उन्हां ताकतां नाल रहना जिहड़े डॉक्टर BR अंबेडकर साहब दे जिहड़ा संविधान है उहनूं खत्म करना चाहदियां ने। जिहड़ी दलित वीरां नूं, जिहड़ी पछड़ियां श्रेणियां नूं, जिहड़ियां साडी घट गिनतियां नूं, साडी इकनॉमिकली बैकवर्ड क्लासिस नूं जिहड़ियां रिजर्वेशनस मिलियां ने, जिहड़ा उन्हां नूं खत्म करनियां चाहदियां ने कि असीं उन्हां नूं वोट पाना। मैं इत्थे बैठे होए बहुत वड्डी तादाद दे विच घट गिनतियां जिहदे विच साडा क्रिश्चियन भाईचारा भी है, मैं उन्हां नूं याद कराना चाहना। थोड़ा जिहा ध्यान करो मणिपुर च की होया, थोड़ा जिहा ध्यान करिए समुचे हिंदुस्तान च की होया, थोड़ा जिहा ध्यान करिए समुचे पंजाब च पिछले 4 सालों तो की हो रहा। पंजाब नाल वितकरा हो रहा। साडा इंटरनेशनल बॉर्डर तजारत वास्ते ट्रेड वास्ते पिछले 10 सालों का बंद करके रखे। अज असी मंग करांगे राहुल जी तो गुरु महाराज साहब मेहर करन 4 तरीक नूं इंडिया अलायंस की सरकार बने, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बने। सारे ने पहले असी राहुल गांधी जी डिमांड करांगे इंटरनेशनल बॉर्डर जिहड़ा साडा सेंट्रल एशिया दे नाल ते फिर यूरोप नाल ये खोलिया जाए, तजारत इत्थे होए, पंजाब प्रफुल्लित होए ते MSP सारे ने पहले मैं मुबारक देना चाहना इन्हें हिंदुस्तान की किसानी नूं इस गल का यकीन दवाया।
ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ 400 ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो पहला कि मैं बेनती करा अपने हरमन प्यारे लीडर श्री राहुल गांधी जी वो थानू संबोधन करन, मैं 2 नारे लाऊंगा, हाथ चक के सारे ने जवाब देना है। श्री राहुल गांधी, और आवाज बुलंद करके भाई, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गांधी जी। केसी वेणुगोपाल जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, हरीश चौधरी जी, हमारे कैंडिडेट गुरजीत सिंह औजला जी, एक सेकंड औजला जी यहां आइए, गुरजीत सिंह औजला जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों और बहनों, पंजाब के युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, इतनी गर्मी में आप आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। पंजाब का मूड कैसा है? मूड कैसा है आपका? आप जानते हो कि आप लोग देश का मूड बनाते हो। भाइयों और बहनों, ये जो लड़ाई चल रही है, ये मामूली चुनाव नहीं है। ये आजादी के पहली बार ये दूसरे तरीके का चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के सीनियर नेता संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। पहली बार इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान के इतिहास में उनकी पार्टी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस संविधान को बदल देंगे, रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, फेंक देंगे। अब इसका मतलब समझिए, लोग सोचते हैं कि यह संविधान 70-80 साल पुरानी किताब है। वो सही है, मगर इस संविधान के अंदर जो सोच है वो 70-80 साल पुरानी सोच नहीं है। वो हजारों साल पुरानी सोच है। मैं अमृतसर में हूं। अगर आप गुरु नानक जी की सोच को देखें और समझें तो आपको पता लगेगा कि इस संविधान में गुरु नानक जी की सोच है। और मैं उससे आगे जाता हूं कि इस संविधान की जो नींव है
इस संविधान की जो नींव है वो गुरु नानक जी ने रखी थी, उनकी सोच ने रखी थी। और सिर्फ गुरु नानक जी ने नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में अलग अलग महापुरुषों ने वही सोच देश के सामने रखी थी। चाहे वो बुद्धा हो, बुद्ध भगवान हो, नारायण गुरु जी हो, बसवना जी हो, इन सब की सोच इस किताब में है। और आज बीजेपी के लोग सामने आके कह रहे हैं कि हम गुरु नानक जी की सोच पर आक्रमण करेंगे और उसको हम खत्म कर देंगे। उस सोच का रिप्रेजेंटेशन मॉडर्न हिंदुस्तान में गुरु नानक जी की सोच का यही रिप्रेजेंटेशन है। गुरु नानक जी ने कहा था कि सब लोग समान हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, सबके साथ मोहब्बत होनी चाहिए। यह कॉन्स्टिट्यूशन भी वही कहता है। तो चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग जो इसको खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है। कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ, अंबेडकर जी के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन लाई थी। तो अगर बीजेपी इस पर आक्रमण कर रही है तो वो अंबेडकर जी की सोच पर भी आक्रमण कर रही है। भाइयों और बहनों, आप देश में किसानों की हालत जानते हो, और आप ये भी जानते हो कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए इतना सा भी नहीं किया। उल्टा आप पर आक्रमण किया। 3 काले कानून लाए, और जब पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, महाराष्ट्र के किसान, मध्य प्रदेश के किसान सड़क पर उतरे तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको आतंकवादी कहा। यह बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया, मगर पंजाब के किसान का, बाकी प्रदेशों के किसानों का 1 रुपया उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया है। और खुलकर कहते हैं कि मैं किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा क्योंकि इससे किसानों की आदत बिगड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अदानी का कर्जा माफ होता है, 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों का कर्जा माफ होता है, तो उनकी आदत नहीं बिगड़ती है, मगर पंजाब के किसान का कर्जा माफ होता है तो किसान की आदत बिगड़ती है। यह कैसी सोच है? कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं पैदल चला, पंजाब से निकला, और हजारों किसानों से मैंने बात की, और किसानों ने सिर्फ 3 चीजें मुझे बोली जो आपके दिल में थी। सबसे पहले आपने कहा कि देखिए राहुल जी, हमें बात समझ नहीं आती है, हमने क्या गलती की है। उनका कर्जा माफ हो जाता है, अदानी अंबानी के लिए कानून बनते हैं, मगर हमारा कर्जा कभी माफ नहीं होता। यह आपने पहली बात बोली। दूसरी बात आपने बोली कि राहुल जी, हम मार्केट में जाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं। सब प्रोडक्ट्स के लिए सही दाम मिलता है, दाम लिखा होता है, मगर जब हम अपना अनाज बेचते हैं
शुगर केन बेचते हैं, आलू बेचते हैं, तो हमें सही दाम नहीं मिलता। और तीसरी बात आपने कही कि नरेंद्र मोदी जी बीमा योजना लाए हैं। इस योजना से 16 कंपनियों को फायदा होता है, हमारा नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, कंपनीज को हम फोन लगाते हैं, ईमेल भेजते हैं, कंपनी जवाब देती है कि हम आपको बीमा का पैसा नहीं दे सकते। ये 3 चीजें पंजाब के किसानों ने, बाकी देश के किसानों ने मुझे कही। तो इन 3 सवालों को मैं आज आपको जवाब देना चाहता हूं। पहला काम, जैसे यूपीए सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था, वैसे ही कांग्रेस पार्टी पंजाब के किसानों का, बाकी देश के किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। दूसरी बात, यह सिर्फ एक बार नहीं होगा। हम सरकार में एक ग्रुप बनाएंगे जो किसानों की फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टडी करेगा, और जब भी हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। एक बार नहीं, अनेक बार हम यह काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि कानूनी एमएसपी हम नहीं देंगे। मैं यहां आपको साफ कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार पंजाब के किसानों को, हिंदुस्तान के किसानों को गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रही है। और तीसरा काम, जो आपने बीमा की बात बोली, नरेंद्र मोदी जी का जो बीमा का प्रोग्राम है वो 16 कंपनियों की मदद करता है। इस प्रोग्राम को हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, किसान फ्रेंडली बीमा योजना बनेगी, और 30 दिन के अंदर हिंदुस्तान के सब किसानों का पैसा उनके खाते में चला जाएगा। उससे ज्यादा डिले नहीं होगा। ये थी बात किसानों की। अब भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का काम किया। आपने देखा होगा, पता नहीं देखा नहीं देखा, उनके आजकल बड़े इंटरव्यूज चल रहे हैं। देखा आपने? देखा? उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, मीडिया के 4 चमचे बैठा देते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, नरेंद्र मोदी जी जवाब देते हैं। सवाल कैसे होते हैं? नरेंद्र मोदी जी, आप आम कैसे खाते हो? काट के खाते हो या चूस के खाते हो? ऐसे सवाल चल रहे हैं। तो उन इंटरव्यू में एक चमचे ने उनसे पूछा, मोदी जी, हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, सोचते हैं पहले, वो थोड़ी देर सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, फिर कहते हैं, क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? नहीं मोदी जी, हम चाहते हैं कि जो आप अमीरों के लिए करते हो, अरबपतियों के लिए करते हो, वो आप गरीबों के लिए करो। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं, पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं
बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुरुषों ने यह बात नहीं बोली, मगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है, सिर्फ उनको। हम सब बायोलॉजिकल हैं, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस रिपोर्टर सब बायोलॉजिकल, मगर नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं। एक व्यक्ति को भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। मैं सोच रहा था नरेंद्र मोदी जी, ये फीलिंग आपको कब आती है? ये आपको 24 घंटे लगता है, या सुबह ऐसा लगता है, या शाम को लगता है? और ये जो आपको फीलिंग आई, ये नोटबंदी से पहले भी आई थी क्या? गलत जीएसटी लागू करने से पहले आई थी? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में परमाणु बम का स्विच है। खैर, बड़े इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी टिप्पणी दे रहे हैं। शायद परमात्मा ने कहा है कि हिंदुस्तान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, एयरपोर्ट्स को, पोर्ट्स को अदानी को पकड़ा दो। मगर पिछले 10 साल उन्होंने यही किया है। तो अब हम उल्टा करने जा रहे हैं। उन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? महालक्ष्मी योजना। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी, पंजाब में, हरियाणा में, बाकी प्रदेशों में। और हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम आएंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार चुनी जाएगी और हम काम शुरू कर देंगे। हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में 4 जुलाई को सुबह आप उठेंगी, 9 बजे आप अपना बैंक अकाउंट खोल के देखेंगी और उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार ने 8,500 रुपए आपके लिए अंदर डाल दिए होंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा। हर महीने खटाखट 8,500 रुपए अंदर। साल के 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में जाएगा। यह क्रांतिकारी काम है। ऐसा काम किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया है। ये हम करने जा रहे हैं। आप सोचिए, सबसे गरीब परिवारों को साल का 1 लाख रुपया, महीने का 8,500 रुपया, इससे गरीबी पर बहुत जबरदस्त चोट लगेगी। लिस्ट में किसानों के परिवार होंगे, मजदूरों के परिवार होंगे, बेरोजगार युवा होंगे और सीधा हम उनके बैंक अकाउंट में पैसे का इंजेक्शन डाल रहे हैं। इसके पीछे सोच है भाई और बहनों, इसके पीछे सोच है। आइडिया क्या है मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए, अंबानी, अदानी जैसे लोगों को। उन्होंने उस पैसे को लंदन में खर्च किया, दुबई में खर्च किया, हिंदुस्तान के बाहर खर्च किया, जमीन खरीदी, होटल खरीदे,
जब आपके पास पैसा आएगा, आप इसको लंदन में नहीं खर्च करोगे, आप इसको पंजाब में खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, शहरों में खर्च करोगे, शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, जूते खरीदोगे, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, ये चीजें आप खरीदोगे। और जैसे ही आपने इस पैसे से ये चीजें खरीदनी शुरू की, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां, अमृतसर की बंद फैक्ट्रियां एक बार फिर शुरू हो जाएंगी और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में पैसा मिलेगा। तो एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल डालते हो और फिर चाबी घुमाते हो, वैसे ही हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, और उस पैसे से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट होगी, स्टार्ट हो जाएगी। किसानों को हम कर्जा माफ कर रहे हैं, गरीबों के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया डाल रहे हैं। आज मजदूरों को मनरेगा के लिए 250 रुपए मिलता है। इंडिया सरकार मजदूरों को मनरेगा के लिए 400 रुपए देने जा रही है। आशा और आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं, आपकी जो भी आज आमदनी है, 4 जून के बाद हम उसको दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे। अब आई बात बेरोजगार युवाओं की। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं से कहा था, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। प्राइवेटाइजेशन किया, सरकारी वैकेंसीज नहीं भरी, अमृतसर, पंजाब और पूरे हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया, गलत जीएसटी लागू की, नोटबंदी कर दी, और इसका नतीजा हिंदुस्तान देख रहा है। आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता। अंबानी और अदानी रोजगार नहीं दे पाते, दे नहीं सकते। रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री देती है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां देती हैं, रोजगार एग्रीकल्चर में दिया जा सकता है। तो हम पहला काम सरकारी नौकरियों को भरने का करने जा रहे हैं। 30 लाख सरकारी नौकरियां आज हिंदुस्तान में खाली हैं। हमारा पहला कदम उन नौकरियों को आपके हवाले करने का होगा। दूसरा काम और क्रांतिकारी काम, दूसरा काम और क्रांतिकारी काम, हिंदुस्तान के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, अरबपतियों के बेटे जॉब मार्केट में जाने से पहले 1 साल की टेम्पररी नौकरी करते हैं। उसमें उनको ट्रेनिंग मिलती है, पैसा मिलता है और जॉब मार्केट में अंदर जाने का मौका मिलता है। मगर ये फैसिलिटी गरीब युवाओं को नहीं मिलती, बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। हमने पहले मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था, उससे करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। मगर जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, इस योजना से उनको फायदा नहीं हुआ। इसीलिए हम ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्रेजुएट्स को एक नया अधिकार देने जा रहे हैं, पहली नौकरी पक्की का अधिकार। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, बीएचईएल, एचएएल, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में आपको 1 साल की नौकरी का अधिकार मिलेगा। बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए जाएंगे, साल के आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को यह फैसिलिटी मिलेगी। इससे हिंदुस्तान को एक ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। बेरोजगार युवाओं के जेब में पैसा जाएगा, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, और वही पैसा जो उनके जेब में जाएगा, जैसे महिलाओं का पैसा अर्थव्यवस्था को चालू करेगा, वैसे ही यह पैसा भी अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करेगा। तो यह हमारी सोच है
मेन चीज संविधान की रक्षा, गुरु नानक जी की सोच की रक्षा, भाईचारा, और जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, सबको एक साथ लाना है और एक साथ मिलकर प्रगति करनी है। ये आपके लिए मेरा मैसेज है। आखिरी बात कहना चाहता हूं, मैं यहां आया था अमृतसर, गोल्डन टेम्पल में मैंने सेवा की, उससे पहले भी गया था, मत्था टेकता था, मगर सेवा नहीं की थी। जब मैंने सेवा की तो बिल्कुल दूसरे तरीके से मुझे बात समझ आई, इतनी शांति मिली, और थोड़ा सा जो आपका ये धर्म है, सुंदर धर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे समझ आया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अमृतसर और गोल्डन टेम्पल को हमें एक ग्लोबल सेंटर बनाना चाहिए। धार्मिक सेंटर, पिलग्रमेज सेंटर, और ये जो सोच है और जो शांति वहां मिलती है, इसको पूरी दुनिया में हम सबको मिलकर फैलाना चाहिए। और इस काम को मैं आपको कह रहा हूं कि इस काम को करने में जो भी मैं कर सकूंगा, जितनी भी मैं शक्ति डाल पाऊंगा, मैं डालने जा रहा हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पे हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय पंजाब। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। मैं हुण बेनती करूंगा अमृतसर की समुची लीडरशिप, साडे कैंपेन कमेटी के मैंबर साहबान,